Hi, guys, welcome back. Today's episode is an ode to all mothers who are successfully managing their personal and professional lives and, are constantly inspiring us. They are a powerhouse and they do so much. And some of us are lazy and we can't even imagine how they do it. But anyway, we have a crowd favorite mom blogger. So, yeah, it is going to be an inspirational episode. Now, a little bit about our guest. When I called her, I thought we are going to talk a lot about just fashion because she's very much interested in luxury and the fashion space, and that's what you're going to gather when you see her Instagram. But actually the episode turned out to be very meaningful. How she started like in the corporate space, how she struggled with getting a job. Let's welcome Harpreet Suri. Hi Harpreet. Hey. So you're popularly known as Mom Wears Prada, and by that we can understand that you really love luxury. So what got you into this in the first place? Why द just luxury? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो आप खुद में जिस चीज़ को बिलीव करते हैं उसी के बारे में बात करें. सो दिस वाज वन थिंग दैट आई रियली बिलीव्ड इन. मुझे अच्छी लगती हैं ये चीज़ें. मतलब आई हैव वर्कड हार्ड टू अर्न टू अर्न देम एंड व्हाई नॉट. मतलब इस मुझे फॉर मी इट्स नॉट लग्जरी और नॉन लग्जरी. फॉर मी आई अप्रिशिएट दीज थिंग्स अ लॉट एंड आई वांटेड टू कीप इट लाइक इतना इट्स एज सिंपल. मुझे Okay. पसंद है तो मुझे लगा मेरे से रेजोनेट करता है तो फिर मैं वही रखना चाहती थी. Nice, lovely. Are you a strict mom or a cool mom? अरे मैं बड़ी कूल मॉम हूँ यार. मेरी हम्म. मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट थी. Okay. तो मैंने So you're कसम the खाई थी. opposite. हाँ हाँ, मैंने हाँ. कसम खाई थी जैसे हम सब बच्चे खाते थे बचपन में कि मैं जब माँ बनूंगी तो मैं इतनी कूल मम्मी बनूंगी. सो आई हैव अ बैलेंस विद माय हस्बैंड. आई हैव मेड श्योर दैट ही इज द डेविल Okay. एंड आई एम द गुड वन. So he's the devil wears Prada Yeah, and you're the I'm the mom mom. wears Prada. Okay. Yes, in our house. Nice, nice. So I'm a Okay. cooler one. Got it. So I want to ask you like a question which I've been seeing a lot. Even when celebrities have their children, they want to hide their identity. They don't want to reveal much about them. And not just celebrities, like even I see in my family or around me that people do not really want to share too much, all these information. They like to keep it private. But you being like a mom blogger, I'm pretty sure you do share like a lot about your kids, your family, people around you. How do you see that as a contradicting ideology? क्योंकि मैं इसमें बिलीव नहीं करती इसीलिए Okay. मैं शेयर करती हूँ. थिंक अबाउट इट. इट्स वेरी इजी. Leave aside a mom influencer. You can look at any other normal mom on Facebook or Instagram. We all put pictures with our kids. मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और मैं सोचती हूँ इसका क्या आंसर होगा. बहुत लोग करते हैं तो मुझे भी बिलीफ है एंड आई फील there's a higher power looking at me and my children also who will protect me. मतलब मैं लाइफ ना बड़ी इजी जीती हूँ प्रियंका. मैं इतना नहीं सोचती अपनी लाइफ में. मुझे लगता है कि जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करती हूँ. मैं ये इफ्स एंड बट्स एंड ये सब मैंने कर लिया अपनी लाइफ में और हम सब इससे जूझ रहे हैं. मैं आगे निकल गई हूँ इससे. मुझे लगता है आगे चलते हैं. आई डोंट शेयर देयर. इतना ध्यान रखती हूँ बिल्कुल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करती हूँ. स्कूलिंग ट्यूशन क्लासेस कहाँ जा रहे हैं ये सब नहीं शेयर करती. बट एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ. उसके लिए तो शक्ल बड़ी खुशी से दिखा देती हूँ. यार प्यारे बच्चे हैं मेरे. बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे. मैं बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ इन चीज़ों को. जब मुझे लोग लिखते हैं आयत का बर्थडे था पीछे और सो मेनी पीपल हैव सेंट मी सो मेनी ब्यूटीफुल मैसेजेस. मैं एक एक मैसेज को पूरा पढ़ती हूँ और उस ब्लेसिंग को उस ब्लेसिंग की तरह लेती हूँ. हाउ ब्यूटीफुली. मैं नहीं सोचती कोई मेरे लिए गलत सोच रहा होगा. ये सब मेरे थॉट प्रोसेस ही नहीं है. आई डोंट So you're not much of an overthinker. नो. यार बहुत सोच लिया यार. Give one 42. tip because everybody out there is an overthinker, including myself. So like give one tip. क्या होगा फिर उससे. मतलब मैं तो 42 में समझ में आया कि 30s में नहीं आया था. मुझे लगता है कि जो होना है वो तो वैसे भी होना है और थॉट इज़ एवरीथिंग. तो इफ़ आई कीप माई थॉट पॉजिटिव एंड कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ मेरे दिमाग में बहुत चल रही होती है. सो मैं कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि मैं उस थॉट को अपने दिमाग से दूर करूँ और बिल्कुल ऑपोजिट थॉट में चली जाऊँ. देयर इज़ नो अदर वे. व्हाट इज़ द वे. फिर आप एंजाइटी में चले जाओगे. आप स्ट्रेस में आ जाओगे. उस सबसे क्या होगा. अपनी हेल्थ ख़राब होगी. तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करने के बाद मुझे समझ में आया है. जैसे लोग नज़र के लिए बोलते हैं. मैं बिलीव ही नहीं करती. मुझे लगता है ऑल इज़ एनर्जी एंड मेरे आसपास मैंने सिर्फ एक गुड एनर्जी से अपने आप को सराउंड किया हुआ है. अपने आप को अपनी फैमिली को. मैं किसी का बुरा करती नहीं तो मुझे लगता है मेरा बुरा होगा नहीं. ये बिलीफ सिस्टम है.
तो मैंने इस बिलीफ बच्चों को भी यही सिखा रही हूँ, अपनी पूरी फैमिली को चेंज कर दिया है इस थॉट से, बिकॉज हर एक इंसान मुझे यही बोलता रहा, नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी। मैं ग्राम पे इतनी स्टोरीज करती हूँ उसके ऊपर, जैसे ना समथिंग सो सिली, आई गॉट अ पिंपल, तो लोग बोलते हैं यू वर लुकिंग सो प्रिटी लास्ट 3 days, नजर लग गई। एंड आई ऑलवेज से दैट मैंने आम खाया यार, अब मैंने आम खाया तो मुझे Okay. पिंपल्स ही होंगे ना। इट इज सो बेसिक, बट हम अपने थॉट प्रोसेस को ना बहुत छोटा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि हम फंस गए हैं, फिर उसी थॉट के साथ हम फिर खेलते रहते हैं। मैं उससे ऊपर उठ गई हूँ और सबको Lovely. सिखाती हूँ। Before we come back to your story, guys, so listen. If you have been, looking for Coldplay passes, now believe in yourself, manifest it, and it'll come to you. And don't overthink that you won't get it. That's the They lesson will, you can draw. everybody will if they actually want it. Yeah. मेरे को true. चाहिए ही नहीं, इफ यू आस्क मी, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं को अपने घर में लगाऊंगी टीवी पे बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे ना, डांस। And luxury में आप देखोगे बैठ यू कॉट दैट वर्ड। Got that, yes. Okay, so you were a PR professional for about, I don't know how many, 15, 16 Yeah, years of your 16 life? years, yeah. And then you suddenly decided, was it like a COVID decision that you took? No, I No? left much before COVID. Okay, so it was like quite a shift. Hmm. So, were there any moments of doubt कि ये तो नहीं हो पाएगा, कैसे होगा? Like, I had such a high paying job. What was the whole process like? ओह, बैक इन द टाइम बहुत अच्छी जॉब में थी मैं। अपने टाइम की बेस्ट जॉब थी वो, पीआर में, मतलब सिलेक्ट सिटी वॉक नंबर 1 मॉल ऑफ द कंट्री, और इतनी अच्छा आप एक हेड कर रहे हो एक डिपार्टमेंट को। और आई वाज, मतलब तो हमारी जो पूरी टीम थी, वी वर डिमांडेड बाय एवरीबडी इन द कंट्री बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल टीम। आई वॉज फेलिंग अ लॉट, आई वॉज फीलिंग इन माई माइंड कि मैं बहुत पेरेंटिंग में फेल कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती थी अपने बच्चों की, जैसे क्लासेस, या आई टू बैश मी माई सेल्फ अप अ लॉट ऑन दैट। ये हो नहीं पा रहा था बस मुझसे अब। गिल्ट, ये सब ना जो हम सब, ऑल मदर्स गो थ्रू दिस, आई ऑल्सो वेंट थ्रू, कोई मेरी अलग कहानी नहीं है, सेम कहानी है। And my daughter, she's a very, very loving child. She used to lie down before I used to leave, for my office. कि don't go, मम्मा। वो ऑल 1.5-2 साल की हो गई थी। मेरा बेटा ना एकदम से बड़ा हो गया था, और वो थोड़ा क्वाइटर भी था, तो मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ। आयत वॉज अनदर चाइल्ड, वेरी डिफरेंट चाइल्ड। और फिर मुझे कहीं कहीं लगने लग गया कि ठीक है यार, फिर अगर यही डेस्टिनी है तो फिर यही सही। आई डू माई बेस्ट इन रेजिंग माई चिल्ड्रन, and I made a very, very conscious decision of leaving my job. इस समय ना मैंने हल्की हल्की कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी थी। Okay. अब लोग इसको कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं, मैं तो अपने ऐसे बस कुछ शेयर कर रही थी। एंड आई रिमेंबर मुझे मेरा फर्स्ट पेड असाइनमेंट भी मेरी जॉब के टाइम पे ही मिल गया था। Oh, nice. एंड तब मुझे लगा यार ये तो बहुत ही सही है यार, ये तो मुझे तो ये करना बड़ा अच्छा लगता है, और इसके पैसे भी मिलते हैं। बट देन ऑफ कोर्स इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस समय। सो आई, फॉर अ ईयर, आई सेव्ड माई सैलरी। मैंने हर महीने कुछ बचाया, बिकॉज मैं बड़ी ना सेल्फ मेड सी लड़की हूँ। माई फादर ऑल्सो टॉट मी दैट। तो मुझे वही आदत है कि अपने उस पर करना है, मुझे नहीं मांगने से पैसे किसी से, अपने हस्बैंड से भी नहीं मांगते, नहीं नोज दैट अबाउट मी। तो मैंने 1 साल अपनी सैलरी को सेव करा और सोचा कि मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ। अगर मैंने कुछ कर लिया, और कुछ, अब ये कंटेंट क्रिएशन कुछ भी हो सकता था, वो कंसल्टेंसी और समथिंग, तो मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं मान जाऊँगी कि यही डेस्टिनी है और दिस इज़ माई फ्यूचर। फिर मैंने लिखना शुरू किया, और आपको पता है सबसे मज़े की बात मेरी लाइफ में, आई वॉज नेवर अप्रिशिएटेड फॉर माई राइटिंग। आई वॉज नेवर एवर एवर अप्रिशिएटेड। आई वॉज ऑलवेज मेड फन ऑफ, या सब मेरा बहुत मजाक से बातें करते थे कि व्हाट इज शी राइटिंग। और आज उसी के मुझे इतने पैसे मिलते हैं। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ, मुझे सही में रियलाइज़ होता है, और मैं बस सबको बताती हूँ, अगर आप बंदरों के बीच में रहोगे ना तो आप शेर नहीं बन सकते, आपको लोग बंदर ही समझेंगे, और वो भी लूजर बंदर। पर मैं तो शेरनी थी ना, पर मैं रॉन्ग लोगों के बीच में थी। सो मैंने क्या अपने आप को ढूंढा। एक्चुअली मैंने अपनी जॉब के बाद अपने आप को ढूंढा। उससे पहले तो मैं एक रोबोट की तरह सुबह उठना, ऑफिस जाना, वो काम करना जो हम सब करते हैं। When I sat with myself, I started raising my daughter, and I started realizing कि मैं कर क्या रही हूँ, मतलब ये तो नहीं है मेरी लाइफ। There's more to me than just doing this. And I also want to say nobody believed into me. Like nobody. Like not even my own parents, who have, my father has always told me, you are the Indira Gandhi, तू इंदिरा गांधी है। मुझे ऐसे हमेशा बचपन से रखते आए हैं कि बेटा तेरी सोच बड़ी है, तू बड़ा सोच। पर जब मैंने ये वाला ऑप्शन हल्का सा उनको दिया, उनको लगा क्या फोटो खींचना है, ये क्या ये लिखना है, व्हाट इज दिस इंस्टाग्राम। बट मुझे तो था बिलीफ अपने ऊपर कि मैं
और ये बिलीव नहीं था कि मैं बड़ी नंबर 1 बन जाऊंगी। ये थॉट से मैंने कभी काम आज भी नहीं करा। ये पॉडकास्ट भी सोच के नहीं है कि वायरल चला जाएगा, ऐसे नहीं सोचती मैं जो करती हूँ अपना बेस्ट करती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें मज़ा आ रहा है और एक घर बैठ के ही करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया बात है ये तो, और शौक भी है। सो आई स्टार्टेड राइटिंग, शेयरिंग माई जर्नी, माई लाइफ, हाउ एम आई स्ट्रगलिंग विद माई डॉटर, हर कॉलेज, बड़ी सारी चीज़ें। आई वॉज जस्ट शेयरिंग नॉर्मल लाइफ, एक औरत, एक माँ की लाइफ जैसी होती है। मेरे बच्चों की फाइट्स या आए अरहान यूज टू की पिंचिंग आयत, एक नॉर्मल माँ, एक जो 2 बच्चों को संभाल रही है। It became very popular. People resonated. I think I came with a fresh breath of air. And I'm till today also, I'm very candid. People see me high up there in luxury, but when I talk, or I'll also go to a Lajpat or a Sarojini or a GK and I'll shop and I'll find out things. I go to Bangkok, to local markets. हम सब ऐसे हैं, हम सब यही करना चाहते हैं। आई नो, हम लोग ना एक अलग सा एक पसौना दिखाते हैं अपना, और हम उस नकली उसमें जीते हैं। मैं जैसी हूँ, मैं बहुत ऑथेंटिकली जीती हूँ अपनी लाइफ, कि मैं ये सब कुछ करती हूँ। और हाँ, आई एम ब्लेस्ड, आई अर्न वेरी वेल एंड कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। बट मैं सबकी जैसी हूँ, मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। मेरे बच्चों को भी मैं आई डू दीज फूड ट्रेल्स विद माई किड्स एट लोकल रोड शॉप्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पीपल रेजोनेट अ लॉट विद ऑल दिस। तो मेरे को ही समझ में आया, ओहो, ये काम करने के लिए, इसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको सिर्फ वो करना है जो आप ऑनेस्टली करते हो। तो दैट्स हाउ इट जस्ट स्टार्टेड एंड हियर आई एम। No, it's important to sit with yourself at a time, because we are always running, especially if you're in like a 9 to 5 kind of a situation. By the time you go home, you're done. Okay. You don't have the time to sit with yourself, think ki where life is headed. And yeah, it is important to kind of do that, to find the originality and then do better in life in a way. Wow, that was like a deep thought. Now I am lost in like a chain of thought. I'll tell Yeah. you, अपने आप के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। पर हम Hmm. लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता है सक्सेसफुल कब होते हो? Hmm. जो मैंने अपने साथ देखा, आई डिड माई जॉब, आई रिमेंबर आई वाज प्रेग्नेंट विद माई डॉटर, आई यूज्ड टू कम होम, sit with my in-laws, teach my children, give my husband time, look at kitchen, did everything and then go back to office with the fresh and happy mind space. और ये difficult नहीं है। You have, when we Sounds difficult for sure. नो, बिकॉज हम ना एक्सेप्ट नहीं करते। हम ना सब अपनी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना लेते हैं। ये तो नॉर्मल है। मुझे लोग जैसे बोलते हैं, अभी तू इतना काम करती है, मुझे अभी आई वाज ऑन अ कॉल विद समवन, यू वर्क सो हार्ड। नो, आई डोंट वर्क हार्ड, आई लव व्हाट आई डू। They are my children, I have to give them time. Who will they go to? They are my in-laws, I have to be nice to them. And it's something I've learned from my parents. He's my husband who's always standing by me. I do tell him at times I'm very tired if we have to go out, but I'm his company and he's my company. अगर हम इन सबको easy कर लेना कि यार ये सब तो मुझे करना है, हम खुशी खुशी कर ले, तो फिर वो अपने आप के साथ sit का टाइम भी निकल आता है कि I'll sit with myself, और बहुत clarity आ जाती है। Nice. Thank you for that. Okay, tell me. So, what I'm seeing on Instagram right now is people, moms who are getting pregnant and everything. They're sharing all sorts of fashion tips. Ki, you can wear this, you can use this brand, this brand. Now, I have not been on this journey, but I'm just asking out of curiosity. Ki when I think about pregnancy, I feel it's like challenging. It's tiring. Usme, can people still think about styling and fashion and everything? Like those tips are actually useful or what? देख, मैं तो एपिटोम हूँ इसका। मैं तो गलत बंदे से तूने पूछ लिया ये क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, बोथ माय प्रेगनेंसीज वर वेरी डिफिकल्ट। माय डॉक्टर हैड गिवन मी 1 crore instructions on this. I think I was one of the first ones who got a baby pregnancy shoot done back in the day, like 14-15 years back. और बहुत फ्लैग भी मिला था मुझे उस समय, अपनों से ही मिला था कि ये क्या तुमने इतना what drama is this. मतलब मैंने जितना एंजॉय अपनी प्रेगनेंसीज को करा है, like I have dressed, I have done my photo shoots, I have traveled with my doctor telling me कि जी बिल्कुल ट्रैवल नहीं करना है. So I asked her, क्यों नहीं करना है? It could be risky. ऐसा अच्छा मैं गोवा गई थी. My in-laws had, I remember, told me कोई नहीं जाना गोवा. And I told my in-laws, अब मैं तो जाऊंगी और सबको साथ लेके जाऊंगी. So I took my entire joint family to Goa because I wanted to go to Goa. And I was like, मैं जाके बैठ जाऊंगी ना बीच पे, नहीं करूंगी कुछ, पाँव ऊपर रख लूंगी. Pregnant woman card you played. Yeah. अरे they were very strict. But I was like, and इसको बीमारी की तरह नहीं लेना है. ये सबसे ब्यूटीफुल फेज है. सबसे, इमेजिन, मैं बोल रही हूँ मेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसीज थी,
बट आई हैड द बेस्ट टाइम. आई ड्रेस्ड. मुझे याद है जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी, ब्लो ड्राई, मतलब विद दोज नेल, बिकॉज नेल पेंट नहीं लगा सकते, तो नेल फाइल क्लीन करा के, लैशेस वैशेस Wow. करके, आई वाज लाइक आई एम सो हैप्पी दैट आई एम हैविंग अ बेबी. कोई बीमारी नहीं है यार, ये तो it was, I wanted my friends to come and see me. I remember first time में तो मैं बुद्धू बन गई थी. My doctor just took me in and she just delivered. And I looked like, I don't know what I looked like. Second time I was fully, I said अब मैं नहीं आने वाली आज. मैं 2 घंटे पहले salon जाऊंगी. I want to look good and then I want to come to you. And then yeah, when my friends came, they said लग रहा है करीना कपूर का बच्चा हुआ है. Because and we delivered बिल्कुल आसपास. Okay. Because I was all ready. Like I had my gowns. मतलब मैंने बहुत, मतलब if you have to see my pregnancy pictures to believe कि ये अभी बच्चा दिया, इन मैडम का बच्चा हुआ है. Like, Send it to me after this I podcast. will. Very good. My daughter and I had twinning. And imagine a Oh, child nice. who's 2 hours old, who's wearing a beautiful this robe and those bows. Well, they went viral. Like they went viral. और जो मेरा रूम था, Wow. मैंने उसको इतना डेकोरेट किया था दैट जो डीन था हॉस्पिटल का एट सीताराम, दे आस्क्ड ये किसका रूम है. मतलब बाहर भी मैंने एक चांद लगवाया, चांद पे बच्चा बिठाया विद बलून्स. ओ माय गॉड, यू हैड टू सी इट. You were very excited. और ये for the सब whole मैं thing. इन्फ्लुएंसर नहीं थी उस समय. ये मुझे बहुत शौक था कि एवरीथिंग इज अ सेलिब्रेशन. लाइफ इज अ सेलिब्रेशन यार. मैं लाइफ को बहुत सेलिब्रेट करती हूँ. Nice. तभी मैं इसमें Talking- सक्सेसफुल हूँ. Okay. Talking about photo shoots, Richa Chadda recently got a really fancy photo shoot done where she got like mixed reactions, I would say. Some people liked it, some people hated it. I feel personally कि ठीक है, it's her personal choice if she wants to get those things on her body, because whatever the meaning, I mean, I did read, but I don't recall it right now. What do you think? I mean, should people really judge you? Like, if you're putting yourself out there, people are going to have opinions, right? But you know, when it comes to like such important things of your life, like pregnancy is special, right? It's like intimate. So what do you think about this? मैं कौन हूँ सोचने वाली? उसकी बॉडी, उसका बच्चा, उसका पेट. यार वो जो मर्जी करे यार. आई डोंट नो व्हाई आर वी सो ओपिनियनेटेड. लाइक व्हाई? व्हेन आई गॉट इट डन, मेरा ना एक नहीं, मेरे 2 शूट्स कराए थे. मैं पहले मैं खुश नहीं हुई, तो मैंने फिर एक और करवाया. आई गॉट टू नो लिटिल लेटर दैट एवरीबडी हैज जज्ड मी ओवर इट, लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली. आई डोंट केयर. It gave me happiness. It must have given her happiness. It's like these are her memories. Like I want to share it with my children, with my daughter-in-law. When you know, when I have a daughter-in-law, कि मैंने ये कराया था. You should also. मैं तो ऐसा सोचती हूँ यार. और रिचा भी I'm sure यही सोच रही होगी कि यार when my kids will grow up, I'm going to show it to them. नहीं करना चाहिए इतना जज यार. सबकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है. You don't know what other person is going through. Not nice. I have no opinion. I'm very happy. If she's happy, I'm extremely happy for her. I heard so much about Deepika also. I was feeling so bad. I said, यार उसने कराया, नहीं कराया, हुआ बच्चा, नहीं हुआ, या ये नकली था, असली था. Her problem, no, it's her husband, it's her. Who are we? Like, why are we so judgmental? What she's been through. Come on. बहुत, we are very judgmental. And मैं कई बार comments पढ़ती हूँ ना नीचे लोगों के, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कितना easy है ना बस कुछ भी बकवास लिख देना. Nobody realizes जो सामने वाला जो पढ़ रहा है उसकी mental health पे कितना फर्क पड़ सकता है. No, but we don't care. That's true. So no opinion. I'm very happy for her. Lovely. Let's talk a little bit about, you know, the kind of fashion inspiration that you got from your mom or your dad or like anybody, any family member that, you know, you resonated with and like you still carry that advice till date. मैंने ना so my father was an exporter. And so my father was an exporter and he used to deal into western wear. तो ये ब्रांड्स अब जैसे H&M वगैरह इंडिया में अब आए हैं, वो उस समय ही used to supply to them. तो मैंने फैशन बहुत जल्दी देख लिया था. मेरे डैड ने, मुझे याद है 11th में मुझे कॉस्मोपॉलिटन का सब्सक्रिप्शन गिफ्ट किया था. Oh, Yeah, like unusual gift. back in the day. Wow. And he's been a very, very forward thinking man. So is my mother. आपको पता है मेरी मम्मी आज भी ना, she's so fond of dressing up. So if I just tell her, I told her it's my daughter's birthday, Mama, Ayat ka birthday, so get ready. She sent me 3 pictures of 3 different suits. मैं केड़ा वाला पावा? I'm like, Mom, she's so full of life. I've learned, I think, you know, we see what we see, we are that. तो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत जिंदा दिल, खुश, शौकीन देखा है.
और इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े बचपन से बड़े रिच है, वी ऑल्सो ग्रोन यू नो. सो बट शी इज वेरी फुल ऑफ लाइफ, वो बहुत फुल ऑफ लाइफ है और मैं उनसे इतना सीखती हूँ. एवरी डे व्हेन आई एम डल एंड डाउन ना, आई जस्ट कॉल माई मदर एंड उनकी बातें बहुत शॉकिंग है वो. तो मैंने उनसे ही ये फैशन टिप्स, मेरे डैड को ऑब्वियसली काम ऐसा था जब लोग आई थिंक फ्लाइंग मशीन की डेनिम्स पहनते थे बैक इन द डे, मैं शॉर्ट्स पहनती थी बिकॉज my father never saw it like छोटे कपड़े. He said, you like it, you wear it. And he made me responsible also. So I was responsible enough with my fashion. Nice. I think in India, it's like kind of changing. Like parents are becoming more understanding and liberal that way. I mean, it's great that your dad gifted you a Cosmo sub. And yeah. at that time, Cosmo had a lot of uh, various types of content as well, which typically a parent wouldn't want their child to read. And I mean, yeah, तो नहीं, that's तब फैशन भी supremely बहुत था forward उसमें. thinking. तब हाँ. बहुत फैशन था. आज बहुत कुछ और भी आ गया, बट तब भी Yeah, today बहुत it's like a फैशन lot था. of culture and art and everything else मैंने also. अपनी Yeah. आपको पता है, मैं ना whatever books my dad used to get me, all your fashion magazines, बहुत उनको मतलब बहुत पता नहीं क्या उनकी थॉट होगी. मैं सोचती हूँ, अब आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं सोच रही हूँ. मैं बहुत कटिंग्स काटती रहती थी सारा टाइम. मुझे बहुत अच्छा लगता है. पता है मैं कैसे, Okay. मैं ऐसे मैगजीन देख के सोचती थी मेरे पास ये भी होगा. आई थिंक दैट्स मैनिफेस्टेशन समटाइम, नाउ दैट आई एम टेलिंग यू. मैं ये भी होगा, मैं ये वाला गाउन पहनूंगी एक दिन, मैं ऐसे शूट कराऊंगी. यू नो, आई हैव हैड, हम अपने बच्चे को जो फीड करते हैं ना, आई थिंक आपका बच्चा वही उस थॉट से ही ग्रो करता है. मैं तो बहुत मैगजीन के कटिंग्स काट काट के रखती, सोची मैं इस कवर पे आऊंगी, मैं ये वाला गाउन पहनूंगी, मेरी आईज ऐसी कराऊंगी मैं. माई डैड आई थिंक पुट दैट सीड इन मी. Tell me this thing, like today parents want to buy a lot of luxury brands and everything for their kids. I think it's like the Stormy influence, Kylie's daughter. She has these really cute mini bags all matching with her mother and everything. So of course parents, want to inculcate that as well. Do you think it's a viable option to actually buy designer brands for kids and everything? For two reasons I'm asking. Firstly, they outgrow everything super fast, right? Like, I mean, something is fitting them today and the next day it won't fit them. So one of the reasons is that. And secondly, what impact does this have like on their thinking, like, how they grow up? Like, what are your thoughts? With my son, I bought him a lot of luxury. उसको तो पता ही नहीं था ना, मैं अपने लिए ले रही थी. फिर हुआ आउटग्रो, फिर हुआ मेरे दिल में बहुत दर्द. सो आई ऑलवेज हैंड्स मी डाउन माई थिंग्स टू माई फ्रेंड्स और माई कजन्स. विद माई डॉटर्स टाइम कुछ नहीं लिया मैंने उसके लिए ऐसा. आई बॉट नॉर्मल क्लोथ्स. हाँ, मैं थोड़ी हाई फैशन ज़्यादा हूँ, तो मैं इंडिया से ना लेके बैंकॉक से ले लूँगी. और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं पेरिस जाके लूँगी, नॉट एट ऑल. आई लव प्लेसेस, वो भी दुबई फैशन फॉरवर्ड है, जहाँ फैशन पहले आ जाता है. मुझे याद है मैंने अपने बेटे को गर्ल्स सेक्शन से पिंक कलर की पैंट्स ली थी जब वो 3-4 ईयर्स का था. ही यूज्ड टू वेयर पिंक, रेड, येलो पैंट्स एंड वॉक अराउंड. तो अरहान के लिए लग्जरी ली, आयत के लिए बिल्कुल नहीं. समझ में आ गया, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम. एंड बच्चे गंदा भी बहुत करते, तो हैंड्स में डाउन भी नहीं हो पाता था. विद रिगार्ड टू देयर थॉट प्रोसेस, ये सब हमारा फीड करा हुआ है. अगर मैं अपने बच्चे को ये बार बार बोलूँगी बहुत महंगा है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, आपको पता है, तो बच्चा भी तो वही सोचेगा ना. मैंने मेरे बच्चों को, आई थिंक आयत को तो अभी भी नहीं पता, अरहान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता. माई किड्स डोंट केयर हाउ एक्सपेंसिव और नॉन एक्सपेंसिव इट इज. ममा हैज गॉट इट. सो माई किड्स शॉप अ लॉट फ्रॉम हाई स्ट्रीट ब्रांड्स, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन. तो मेरा मतलब माई सन पिक्स अप टी शर्ट्स फॉर 799. उसको बहुत शौक है कि वो आजकल नए नए ब्रांड्स आ गए ना बच्चों वाले, तो ही पिक्स अप फ्रॉम देयर. ना मुझे कोई फर्क पड़ता है ना उसको. मतलब आई वुड हैव पिक्ड अप, कल आई वाज इन जीके, आई रिमेंबर, एंड आई वाज सीइंग दिस पैंट सूट व्हिच वाज फॉर 2500. तो इट डजंट अफेक्ट मी. मैंने कभी सोचा ही नहीं है. फॉर मी फैशन इज फैशन. अब वो स्ट्रीट से उठाया हो, यहाँ तो आई गो टू एम्पोरियो एंड आई पिक अप, आई गो टू पेरिस, आई सी सो मेनी प्राइवेट व्यूइंग्स आई एम कॉल्ड फॉर. वो एक पार्ट ऑफ मी है. फॉर मी इट्स फैशन, लाइक हाउ आई वाज टेलिंग माई फ्रेंड ऑल्सो ऑन शॉपिंग, they were like, नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से लेते हो. And I was like, ये मैं पहनूंगी, I'm going to style it. So I tell my kids also, how you style something is everything. You can pick it up from a rack or a rag, but how you style it is everything. तो मैं उनके दिमाग में डालती नहीं है गुच्ची है, प्राड, जो भी brands, we don't have these conversations. Okay. And do your kids, have they ever commented something funny on your fashion sense? Like, tell us a story, So I want to know. माई सन, आई रिमेंबर, बीच में ना बड़ा कॉन्शियस हो गया था मॉल जाने के लिए, तैयार होके जाना है बिल्कुल. सो आई एक्सप्लेन्ड इट टू हिम दैट बेटा, मॉल एक कम्युनिटी सेंटर होता है.
वहाँ हम तैयार होके नहीं जाते हैं. You just walk into a mall and you pick up a coffee, you pick up your grocery, you go pick up something you want to buy, clothes or whatever. It is not dressing up and going. I don't like it. क्योंकि मैं एक मॉल कल्चर मैं एक जॉब करती थी, मैं रिटेल में काम करती थी, so I've understood this. So he told me once कि आप तो मुझे बोलते हो, आई रिमेंबर आई वाज एट द स्टेप्स ऑफ अ मॉल एंड आप तो मुझे बोलते हो कि बहुत सिंपल बन के जाना चाहिए, या आपने रेड पैंट और ये पिंक वो सब पहन के आप क्यों आए हो. And you told me you're not supposed to wear luxury and go to a mall. And I was like, beta, I picked this chappal I picked up from GK1. And even the pants are from GK1 for $500. I said, it's not about expensive, non-expensive. It is how you carry it. That day, he understood कि अच्छा ये मतलब नहीं है कि महंगे कपड़े पहन के जाना है. आपको स्टाइलिश होना चाहिए, और वो स्टाइलिश ना वो आपको एफर्टलेस होना चाहिए. आई डोंट वांट टू ट्रेन माय किड्स टू बी स्टाइलिश. आई वांट देम टू बी effortlessly stylish the way I do it. I just pick up my things, what goes with what, and I just make a pair and I mean, my daughter's picking up a lot and I'm very happy about it. वो बहुत शी mixing, and वो हर रोज रात को she becomes a mini Harpreet Suri. There's a fashion show in my house every single day. I will actually ask about this. I want to show you her videos, or I'll send you her photos. So she wears everything that I have, from my hat to my bag, gloves, everything. And then she goes in front of the mirror. I know she'll talk. And I was observing. I said, "What are you becoming a teacher?" She said, "No, I'm becoming Harpreet Suri, mini Harpreet Suri." And I love it. See, that's how they pick it. She was trying to talk like me, and I like that. And बच्चे ऐसे सीखते हैं यार. मैंने अपनी मम्मी से सीखा था. वो अपनी मम्मी से सीख रहे हैं. Nice. Thank God you said the thing about the mall, because I have gone to the mall in night suits so many times, and I'm so guilty. real And my stylish. friends have told me, "What's wrong with you? ऐसे कौन जाता है?" Like, And that's the only. आपको पता है, I used to also work in a hotel. Okay. हमारी ब्रीफिंग थी ये कि जो इंसान नॉर्मल कपड़ों में आता है, लाइक ट्रैक्स में आता है, कैप एंड हाई पोनी एंड ऑल दैट, Yeah. वो रियल रिच लोग हैं. जो सबसे ज्यादा तैयार होके आते हैं, वो सिर्फ एक कॉफी पियेंगे और देखेंगे निकल लेंगे. दे आर नॉट अ कस्टमर. कस्टमर इज जो बिल्कुल रिलैक्स कैजुअल है. और मॉल में भी ये आप कभी भी देख लो, दोज हु रियली शॉप, दे आर नॉट ड्रेस, दे आर नॉट ब्लो ड्राइड, they just वो again retail से learning है मेरी. It's a community center. People come here to buy their needs. They are not going for a fancy dinner there. It's only for your needs. मैं तो यही सोचती हूँ. No, that's absolutely right. And thank God you said it. आप कभी मुझे मॉल में देख लेना. मतलब कितनी बार मॉल में मैंने हेयर कलर लगाया होता है. I'm wearing that shark cap and I go to the washroom. Because I feel मैं ये मॉल है, यहाँ एक सैलून है. मैं यहाँ मतलब ऐसे तो जाऊंगी तैयार थोड़ा ना. अगेन इट्स माई पर्सनल थिंकिंग. और मुझको देख के आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे आसपास में देखती हूँ बहुत ईज आउट हो गए हैं कि अच्छा अगर ये ऐसे मॉल जा सकती है. बिकॉज पीपल थिंक आई एम गोइंग टू बी अ सर्टन वे व्हेन आई गो आउट. एंड व्हेन आई गो आउट I'm most simply dressed. I'm only dressed up when I'm going for a shoot or if I have a fashion show or something. Otherwise, I'm in my most plain jeans. I'm wearing this. I've just added like a hot pink shoe to it. And that's it. I feel that social media has a big role to play in this, because even like I have a sister who's like just 13, and she's like a Snapchat user. I'm not much of a Snapchat user, and I don't know how to control those aspects really. But the point is ki her friends will they make like such fake scenarios. Yes, like one day yes. they're like, my dad bought me these Gucci shoes, ye ho gaya, and then she'll be like, yaar ab meko bhi chahiye. Peer pressure. Peer pressure. So have you faced something like that ever with your kids? I keep telling my kids that your parents don't earn for your friends. We earn for our house. मैंने अपने बच्चों को अपनी इनकम, अपने हस्बैंड और अपनी बहुत क्लियरली समझा रखी है कि इतनी तुम्हारी ट्यूशन फीस है, इतनी तुम्हारी स्कूल की फीस है, ये तुम्हारे और खर्चे है, ये तुम्हें जोमेटो पे ऑर्डर करने हैं. तो बेटा इतना बचने के बाद तो फिर तुम्हें गुच्ची के जूते खरीदने हैं या H&M से लेने हैं. वो तुम विच एवर ब्रांड यू वांट टू बाय, लग्जरी और नॉर्मल. इट स्टार्ट्स एट होम. Everything starts at home. My husband, his shoes collection, his eyewear collection is known. Like he picks up rare pieces. My son loves to wear it. So my husband says, "मेरे लिए पहन ले यार. Don't expect me to be buying all this for you. I have earned it." And he's really worked hard for it. And I also feel the same whenever my son asks me, "Bachche, and I tell him, it's mine. I'm happy to share it with you. I have earned it. And no pressure in my house. मेरे घर में कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता पड़ोसी वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं. I have done my best to be where I have come. आप भी कर लो बेटा. मतलब
एंड आई ऑल्सो टेल हिम कि आपको और आगे करना चाहिए ताकि आप मुझको ये सब लेके दो, द वे वी लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स नाउ. Again, it starts at home. Everything starts at home. I think this is a learning for like kids and their parents as well. Sometimes parents feel a certain way but don't know how to put it across to their children. You know, they are like sometimes they get angry. अपनी बैलेंस शीट और दिखा yeah. दो बच्चों को, बेस्ट कि भाई यही है, अब हमने तो इतनी Hmm. पढ़ाई की थी, मैं इतना ही दे सकती हूँ, तुम और पढ़ लो, तुम और कुछ कर लो या और कुछ नया अपना सेटअप बना लो, हमारे को भी ऐश कराओ फिर. सिंपल. किस बात का प्रेशर यार, नो प्रेशर. सो आई वाज गेटिंग दिस होल मॉम, एक मॉम स्पेस है उसको कैप्चर कर लिया, बड़ा अच्छा काम कर लिया उसमें. अब बच्चे बड़े हो रहे थे, फिर अच्छा पता है सबसे फनी क्या है, मैं ये सोच ही नहीं रही हूँ कि मैं मॉम कर रही हूँ. मुझे मॉम क्रिएटर का भी बेस्ट अवार्ड मिल गया, मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल का भी मिल गया, मुझे लोग वुमन का अवार्ड दे रहे, मोस्ट इंस्पायरिंग वुमन क्रिएटर. मैंने कभी अपना को सेगमेंट ही नहीं किया है, मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करने का मन करता है. I think agencies, brands, audience, people, I don't know, everybody else is putting these tags on me. मैं सच्ची में बहुत मजे कर रही हूँ. मतलब आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव टॉकिंग टू विमेन एट ग्राउंड लेवल ऑल्सो, ऑनलाइन मीटिंग, मेंटोरशिप. जब मैं बढ़ रही थी ना, मेरी ना लाइफ में 2 फेजेस आए थे. एक तो मैं जब अपनी जॉब में थी, मैंने बहुत धक्के खाए हैं नौकरी के लिए, बहुत. मैं ना उस दिन अपनी डायरी पढ़ रही थी और मेरा मन किया मैं इस जो लड़की ने लिखा हुआ है ना अपने बारे में, जो मैं अपनी डायरी पर कर रही, हाय मैं इसको ऐसे कैसे हक करके बताऊं तो बहुत कुछ कर लेगी अपनी लाइफ में. यू नो लाइक व्हाई वाज आई सो इनसिक्योर कि मेरी लाइफ में मेरा होगा क्या. तो देयर वाज नो सपोर्ट, नो हेल्प, नो मेंटोर, नो वन. बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आई हैव रीच्ड वेयर आई डिड इन माय जॉब. तो मैंने तब अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मेरे पास कोई आएगा कभी जॉब की हेल्प के लिए, तो मैं जहाँ जिसको जानती होंगी ना आई एम गोइंग टू हेल्प. फिर आया मेरा कंटेंट क्रिएशन का टाइम. इसमें तो कोई एसओपी कोई है ही ना, एजेंसी, ब्रांड, जॉब, कोई रिक्रूटर, कुछ There's भी नहीं no होता. blueprint, yeah. देयर इज नथिंग, नो एसओपी हियर. बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, कैमरा भी से पकड़ना सीखा कि ये एंगल नहीं है, ये इतना इतना बेसिक से सीखा. तो तब भी सोचा था कि यार अगर कभी कुछ कहीं पहुंची तो सबको ही हेल्प कर दूंगी कि यार मेरे को तो आगे तुम भी सीख लो मुझसे, बिकॉज दैट्स हाउ आई थिंक वी ऑल विल ग्रो, एक कम्युनिटी बन जाएगी पूरी. तो मैं अपने दोनों प्रोमिसेस फुलफिल कर रही हूँ, तब भी किया था और इसको भी कर रही हूँ. अब लोग कहते हैं इंस्पायरिंग हैं आप, मुझे लोग बोलते हैं हम ना आपकी टॉकिंग स्टोरीज को ना प्ले कर लेते हैं और ड्राइव कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं. और मैं सोच रही होती हूँ मैं अच्छा चलो बहुत अच्छा है, किसी की लाइफ में कुछ तो फर्क पड़ रहा है जिससे. बट आई हैव नेवर कैटेगराइज्ड माई सेल्फ. पीपल कीप कैटेगराइजिंग, गिविंग मी अवार्ड्स, मैं खुश होती रहती हूँ उसमें कि चलो ठीक है अब कुछ नया करते हैं. मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये बकेट लिस्ट में ये भी टिक हो गया, मुझे ये चाहिए था, मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया. मैं ऐसे सोचती हूँ. मैं नहीं सोचती कि मुझे कहीं पहुंचना है, कोई रेस है, कुछ नहीं है यार. एक This is जिंदगी मिली है. important for a lot of mothers because, you know, at times they do feel confined, like, especially if you're like working like at home, like for your children or whatever. So you sort of feel ki, oh, what's the purpose of my life? Why am I doing this? Why am I doing that? So I think that's kind of inspirational. You have to find any purpose. चाहे वो ट्यूशन पढ़ाना हो अपने मेड के बच्चों को, वो भी बहुत सेटिस्फाइंग है. it's there's purpose in everything and there's हर चीज में आपको रोशनी दिख जाती है यार, आपको देखना आना चाहिए. मुझे भी दिखी गई, इतनी दिख गई कि मतलब समझ ही नहीं आया. अच्छा इतना बड़ा वर्ल्ड है, आई डिडंट नो द वर्ल्ड इतना बड़ा था. मेरा होराइजन इतना सा था, आज मेरा होराइजन इतना बड़ा है बिकॉज आई वांटेड टू सी इट. There's this reel again trending on Instagram where people are, you know, sort of now creating ki these are the brands I'm never going to work with. Okay, like हाँ they हाँ do हाँ all of that, right? Have हाँ you हाँ. seen? So if you had to make such a reel, what would be like? I don't want you to name any brand. I just want to know, ki, you know, what are the kind of things that you don't resonate with and you won't work with. I don't resonate with people showcasing I'm buying this, I'm buying that. मुझे लगता है आजकल इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, जो इसलिए मैं आप मानोगी नहीं, आई डोंट वांट टू सी एनीवन स्टोरी. मैं कुछ 5-6 लोगों को फॉलो करती हूँ, बिल्कुल बेसिक लोग हैं मेरे फ्रेंड्स टाइप, या कुछ मेरे क्रिएटर जो मेरे फ्रेंड्स हैं. एंड आई ऑलवेज कॉमेंट बैक ऑन देम, आई ऑलवेज राइट ऑन देयर स्टोरीज. मुझे लगता है बाकी सब लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं, सब वैलिडेशन के लिए जी रहे हैं. मैं रिच हूँ, मैं पतली हूँ, मैं या लड़का है तो बॉडी बड़ी अच्छी है मेरी, मैं रोज़ पार्टी करती हूँ, मैं 4 बजे तक पार्टी करती हूँ. क्या वैलिडेशन है यार, ये किसको दिखा रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा. इट इज़ सो टॉक्सिक फॉर मी. 2 years back
I banned all this. I said, I will not. Because, you know, what you get up in the morning with and you see all of this, आपका दिमाग वहीं चलता रहता है यार कि उसने ये ले लिया उसका, अच्छा वो हो गया, अच्छा वो वहाँ चली गई. वो उसकी जर्नी है यार, और वो क्या पता कि उसकी जर्नी में उसके साथ क्या क्या हुआ है. और जितना हमने प्रेशर ये सोशल मीडिया पर नकली डाल दिया है ना, it's very toxic. I tell my kids also this. My daughter is not on gram. I tell my son also this कि बेटा ये सब आपको उसकी पेरेंट्स की जर्नी नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँचे हैं. एंड फॉर माई हस्बैंड ऑल्सो वी बोथ ओनली सी इंस्पिरेशनल थिंग. हम अंकुर वाड़ी को ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं. सुबह सुबह की ना बिल्कुल एक मॉर्निंग अच्छी डोज होनी चाहिए, और हम लोग सुबह वॉक पे जाते हैं, अपना अच्छा मैनिफेस्टेशन का कोई पॉडकास्ट लगा लेते हैं, एंड यू नो एटलीस्ट ऑल डे द एनर्जी इज सेम. सो या, if that answers your question. Lovely, nice. Okay, fine. That was some great, lovely insights. Now at the end, we play like a game. You have to be quick about it. I'll ask you a few questions, but don't take a lot of time. Okay, let's start. A fashion advice for mothers in one line or less. Wear what you like, not what people want you to wear. A celebrity mom you look up to for their impeccable taste. So I love Sonam Kapoor. Like, love her. Your guilty pleasure. Chocolates. A food item you will never allow your kids to eat. Boba tea. Oh man. I hate it. Just look at my face. I hate it. And every child wants boba tea. My daughter and I have so many fights over it. I'm finding reels to show her how bad it is. I keep sending her all the reels of bad food. See, this is palm olive oil, this is that oil. And boba is like on my hit list. I want to... Don't get me started. Angry mother in the house. Okay, lastly, a lunch tiffin favorite of yours that you highly recommend to all mothers. और बहुत ही मतलब मेरा बस चले तो मैं सिर्फ एशियन खाना खाऊं, मैं सिर्फ, पर चलो नहीं, ऑल मदर्स को बताना है ना, तो मैं बहुत ट्राई करती हूँ. माई किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग फूड कल्चर दैट इज गोइंग ऑन टुडे. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स ऑफ दीज नूडल्स, ऑर्गेनिक रागी कर दी मैं सब कुछ. मैं रागी मिलेट्स पे ले आई हूँ, तो खाओ नूडल्स खाओ, पर रागी और ये वाले खाओ, मिलेट्स वाले. तो मैं इन चीज़ों पे बहुत शिफ्ट करा रही हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि कितनी खिलाऊँ ना नूडल्स, एंड दे आर नॉट गोना लीव इट. Lovely. Thank you so much for talking with us today. We enjoyed talking. I personally loved the conversation. I hope you guys listen to it, and do like, share, subscribe, and comment. Thank you so much. Bye.